Parvasist. This is the video of geography in chapter number 3, water resources, class 10. Water resources. Student, you already know that 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of its account for the fresh water that can be put of use. This fresh water is mainly obtained from the surface, runoff and groundwater. It is continuously being renewed and the recharged through the hydrological cycle. All water move within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resources. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water, and water is a renewable resource, then how is it that the country and region around the global surface from the water scarcity? What is the water scarcity? Shortage of water for the drinking purpose is called the water scarcity. जब भी हमारे पास वाटर की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड द वाटर स्कैरसिटी. एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ वाटर? सभी जानते हैं पानी का यूज़. हम सुबह से जब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए हमें वाटर की नीड होती है. ड्रिंकिंग पर्पस, वॉशिंग पर्पस, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग, इरिगेशन और ना जाने कितने रिसोर्स यूजेस हैं जो वाटर का हम करते हैं. रीज़न ऑफ द वाटर स्कैरसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड what water scarcity. What is the water scarcity? Shortage of water is called the water scarcity. Reason for the water scarcity: unequal distribution of the water. This is the reason of the water scarcity. देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर पानी रेनफॉल बहुत कम मात्रा में होता है. तो जहाँ बहुत कम क्वांटिटी में रेनफॉल होता है वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होती ही है. सेकंड, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, large and the growing population is thus consequent great demand for the water and unequal access for it. A large population means more water not for the domestic use but also to produce the more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being exploited to expand the irrigation area and dry season agriculture. Commercialization of agriculture. Expansion of the irrigation area and dry season agriculture. Construction of the tube well by the farmer. क्या जैसे जैसे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे उसी के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जा रहा है, जिससे वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है. जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. Post independent India witnessed intensive industrialization and the urbanization create the vast opportunity for us. But today the large industrial houses are the common place of the industrial unit of the MNCs. The over increasing number of the industry has made matter worse by the existing pressure on the existing freshwater resources. Industry, apart from being heavy uses of water, also required power to run them. Much of these energy come from the hydrological power. Today, in India, hydroelectric power contribute approximately 22% of the total electricity produced. Next, need to conserve and manage water resources. हमें वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की, कंजर्व करने की नीड क्यों है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये अभी से कुछ होना स्टार्ट हुआ है कि
वाटर कंजर्वेशन हम अभी से कुछ सीख रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन ये एंशियंट टाइम से स्टार्ट हो चुका है, जब से हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम से, स्टार्टिंग के टाइम से हमारे यहाँ पर कैनल्स, डैम, इन सब की इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ पर रही है। आप किसी भी पुराने कंट्रीज़ को, किसी भी डेवलप सिटी को आप चेकआउट करें तो आप ये देखते हैं कि कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है जो नियर द रिवर नहीं है। पानी की ज़रूरत हमें शुरू से है। तो जहाँ पर भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ हमने ये देखा है कि वो डेवलपमेंट उस जगह पर हुआ है जहाँ पर हमें पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है ना। हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन द एंशियंट टाइम, इन द 1st century BC in Seringampuram, water harvesting system was existed using the flood water from the Ganga river. During the time of Chandragupta Maurya, डैम, लेक एक्सेट्रा वर बिल्ड। बहुत सारी डैम्स, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, ये कोई भी हमारे यहाँ पर राजा, मुगल शासक भी रहा है तो उन्होंने भी डैम्स, कैनल बनाने का काम किया है, क्योंकि वो भी इरिगेशन की इम्पोर्टेंट जानते थे। इरिगेशन सिस्टम वाज फाउंड इन द कलिंगा, नागार्जुन कुंडा, बैनूर एंड कोल्हापुर। ये सब कुछ इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर बनाए गए। In 11th century, Bhopal lakes were built. This is the artificial lake of this time. ये आर्टिफिशियल लेक थी हमारी भोपाल लेक, आर्टिफिशियल लेक जो कि ह्यूमन मेड लेक्स है। इन द 14th century, इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टर अ टैंक इज द होस खास, जो दिल्ली में उनको भी पता था कि इम्पोर्टेंट है और इसकी इरिगेशन सिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसकी सप्लाई के लिए उन्होंने सीरी फोर्ट के पास, सीरी फोर्ट उनका एरिया था, उसके पास उन्होंने एक इरिगेशन के लिए खोज घास बनवाई थी उन्होंने, तो इम्पोर्टेंट थी उनकी, इसलिए बनवाई। नेक्स्ट है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द एंशियंट टाइम। देखिए यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब ये पानी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता था इरिगेशन पर्पस से, डोमेस्टिक यूज़ से, जिसको बाद में यूज़ किया जाता था डैम एंड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम को ही हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं, क्योंकि डैम एक वो है जहाँ पर हम डैम का यूज़ हम काफ़ी, मतलब अलग अलग एम से, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound वाटर एंड रेन वाटर दैट कुड यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड। एट प्रेजेंट डैम आर बिल्ड फॉर द मल्टीपर्पज यूजेस, देयरफॉर इट इज़ नाउ कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है क्योंकि अलग अलग तरीके से डैम के वाटर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द डैम? डैम क्या है? अ डैम इज़ अ बैरियर across flowing water that obstruct, direct and restrain the flow, often creating a reservoirs, lakes and the impoundment, जिससे एक बैरियर की तरह काम करता है। पानी जो अगर फ्लो में है तो डेवलपमेंट करता है, लेकिन अगर ये ओवरफ्लो है तो ये डिसास्टर करता है। जहाँ ये विनाश का काम करता है, जहाँ ये निर्माण का काम करता है, डेवलपमेंट करता है, वहाँ ये विनाश का काम भी करता है। तो डैम, पानी को कंट्रोल करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, हाइट के अकॉर्डिंग, इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग, मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डैम को क्लासिफाइड किया गया है। टिम्बर डैम, लकड़ी से बना हुआ डैम भी काफ़ी फेमस डैम है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम एंड मेजर डैम, अल्टरनेटिव डैम, लो डैम, मीडियम हाइट डैम एंड द हाई डैम। ये हाइट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है कि ये लार्ज डैम है, मीडियम है, लो है, हाई डैम है या मीडियम हाइट डैम है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है।
यूजेज ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जो ये डैम के हम यूज़ की बात कर रहे हैं, जो डैम है उसका किस तरह से यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इसे हम हाइडल पावर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्लड कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप देखते हैं तो उत्तराखंड वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है। उस पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम का यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई के लिए। जिस एरिया में कोई रिवर फ्लो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो नहीं होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, तो उन एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए डैम के वाटर का यूज़ किया जाता है। एंड द इरिगेशन पर्पस से इसका डैम वाटर का यूज़ किया जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पर सपोज़ कीजिए या तो बारिश बहुत कम हुई है, नहीं हुई है, तो वहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हम वहाँ पर इरिगेशन के लिए डैम वाटर का यूज़ करते हैं। एंड द हेल्प टू प्रमोट द टूरिज़्म, टूरिस्ट प्लेस पर उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें काफ़ी रिक्रिएशन एक्टिविटी मिल जाती हैं, तो इस वजह से भी डैम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सम डैम ऑफ इंडिया के वो कौन कौन से डैम हैं जो हमारे यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। भाखड़ा नागल डैम, भंगड़े से ही समझ में आ जाता है कि ये हिमाचल और आपका पंजाब बॉर्डर पर बना हुआ डैम है। भांगड़ा नागल प्रोजेक्ट ये सतलुज रिवर पर बना हुआ है। यूजेज बोथ ऑफ द हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड द इरिगेशन पर्पस, हाइडल पावर प्रोड्यूस करने के लिए और इरिगेशन पर्पस से इस डैम का यूज़ किया जाता है। हीराकुंड डैम ये महानदी पर बना हुआ है, महानदी आपकी पेनिनसुलर रिवर है, उस पर बना हुआ है। इंटीग्रेट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द फ्लड कंट्रोल करने के लिए इस डैम का यूज़ किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने डैम को टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोला है। क्यों बोला है ना, क्वेश्चन है कि क्यों बोला है। इट वुड इंटीग्रेट, उन्होंने कहा है कि डैम वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। ये जो डैम है वो इरिगेशन पर्पस से जब इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर पर्पस से इम्पोर्टेंट है, तो इट मीन्स ये विलेज इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारे यहाँ पर हर तरह से डेवलपमेंट होता है। इस वजह से इन्होंने पंडित नेहरू ने मॉडर्न टेम्पल बोला है डैम को। ड्रॉबैक ऑफ द डैम, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन्स के टू साइड होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो अच्छाई हमने बहुत पढ़ी है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं डैम के, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो ड्रॉबैक क्या है, इफ़ेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको वो इफ़ेक्ट करता है डैम आल्सो फ्रेगमेंट रिवर बैंक, मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वेटिक फ्लोना टू माइग्रेट, स्पेशली फॉर द स्पैनिंग, degradation of the forest and soil due to the submerge during the flood. Irrigation pattern have changed. Cropping pattern has changed from the subsistence farming to intensive farming, which has resulted in the ecological imbalance and salination to the soil. Dam have to of the soil. Soil ने ये जो डैम्स हैं, डैम्स की इरिगेशन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई है, इस वजह से हमारा इरिगेशन सिस्टम चेंज होने से हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है ना। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, जहाँ पर पहले हम केवल फार्मिंग केवल अपनी फैमिली के लिए करते थे, या अब इंटेंसिव फार्मिंग करते थे, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम करने लगे हैं। सॉइल का रिजल्ट भी डाउन हुआ है, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो डाउन हुई है। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हमारे यहाँ पर डेवलप हुआ है, तब से सॉइल डिग्रेड ही हुई है। इट आल्सो कॉजेज अर्थक्वेक, वाटरबोर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड द पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। ये सब हमारे ड्रॉबैक हैं। डैम हैव क्रिएटेड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल हु वांट डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम द प्रोजेक्ट। डैम एक कावेरी रिवर है जो साउथ की रिवर है, आपकी साउथ रिवर,
उस रिवर, उस कावेरी रिवर के कावेरी रिवर पर आप पता है कि कावेरी रिवर हमारा कर्नाटका और केरला, वहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है। उन दोनों स्टेट में उस रिवर वाटर पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, ये सब डैम के ये एग्जाम्पल हैं जो आपको डैम ना बनाने के लिए या डैम से जो नुकसान होते हैं उनसे जो वहाँ की नेटिव पीपल्स को जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है। इसे वाटर कंजर्वेशन इससे होता है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, ये सब वाटर कंजर्व करने के लिए मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है ना, जब हम रेन वाटर, बारिश के पानी को हम यूज़ करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको ड्राई सीजन में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब जो मेथड हैं, ये सब जो मेथड्स हैं, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर रीयूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इंस्टेड ऑफ अलाउइंग इट टू रन ऑफ इन द ड्रेन एंड द वेस्टिंग इट। इससे बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी सिंपल एंड कैन बी बिल्ड इन द एवरी हाउस। अगर हम ये देखते हैं जो पुराने घर बने हुए हैं वहाँ पर तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन जितनी भी अब नई कॉलोनीज बिल्ड हो रही हैं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो बिल्ड होती है, वहाँ पर आपके मकान का जो नक्शा होता है वो तभी पास होता है जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें पास हो जाता है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप स्कूल, इंस्टीट्यूशन, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा ये सब जगह पर देख सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है। इसके अलावा और क्या क्या मेथड हैं वाटर हार्वेस्टिंग के? हिली एरियाज, माउंटेनियस रीजन की आप बात करें, पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल एंड कुल। हिली एरियाज मीन्स द ईस्टर्न एरियाज, जो जहाँ पर हम कहते हैं बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, चेरापूंजी, मेघालय, ये वो एरिया जो ईस्टर्न हिली एरियाज में होते हैं। उस एरिया में पानी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वाटर प्रिजर्व करके रखते हैं वहाँ के लोग, और उस चैनल्स को, वो उस पॉन्ड को वो गुल और कुल के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न हिमालय की बात करें, हिमालय एरिया जहाँ पे बारिश होती है, फ्लड एरिया होता ही रहता है, तो वहाँ पर भी पानी की कमी रहती है। जैसे हम सुनते भी हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रिंक टू अ ड्रॉप। सुनिए ना ये कहावत, क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि पानी हर जगह होता है। ईस्टर्न एरिया की हम बात करें तो वहाँ पानी हर जगह है, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं होता है। तो गुल और कुल ये वेस्टर्न हिमालय में वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। फ्लड एरिया बंगाल, जहाँ पर हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनाती है, पानी की कमी वहाँ भी नहीं है, फ्लड वहाँ पर भी होता है। देखिए, पीपल बिल्ड इरिगेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड, वहाँ पर भी इरिगेशन चैनल बनाए जाते हैं जिससे वो अपने जो यहाँ पर ये डेल्टेनिक एरिया है उस पानी को वो बर्बाद ना कर सकें, तो वो इरिगेशन पर्पज से उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं। थर्ड है हमारा मेथड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग उस एरिया में होता है जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है। इन जैसे राजस्थान एरिया, वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत बारिश होती है, देखिए थोड़ा बहुत तो बारिश होती है वहाँ भी, तो जो थोड़ा बहुत वहाँ बारिश होती है उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज से। और वहाँ ये मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है राजस्थान में। इसके अलावा एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो हमारा एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है, एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज, वहाँ पर इस तरह से पानी को प्रिजर्व करके रखा जाता है कि वो उस पानी को आगे अपने लिए यूज़ कर सकें, आगे किसी भी तरह से
इरिगेशन पर्पस से उसको यूज़ किया जा सके, उसे हम खादिन, जैसलमेर में खादिन बोलते हैं, और राजस्थान के अदर पार्ट में उसको जोहड़ वगैरह बोलते हैं, जोहड़ हमारी साइड में भी बोलते हैं। तो इस तरह से पानी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और इरिगेशन पर्पस से वो उसको यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पलर पर्ली। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्सेज है। इसको स्टोर किया जा सकता है, स्टोर करते भी हैं वहाँ के लोग। इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर व्हेन ऑल द अदर सोर्सेज हैव द ड्राई अप। जब और सब सोर्सेज उनके लिए ख़त्म हो जाते हैं तो वो इस तरह के मेथड का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए, वाटर को यूज़ करने के लिए। इट इज़ कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। ये पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है कि इसको वो पानी पीने के लिए। दूसरे तो जैसे अब राजस्थान में जोहड़ की बात की हमने, तो वो तो इरिगेशन पर्पस से होता था, लेकिन इसका यूज़ वो ड्रिंकिंग पर्पस से भी कर सकते हैं। टैंक एंड टैंकार्स ऑफ द राजस्थान, इस तरह के कुछ टैंक वहाँ पर बने होते हैं। ठीक है, कुछ टैंक किस तरह से बने होते हैं कि